was the stag at the pool, and today I will be going to teach you the second fable, the dog at the manger. So let's start. So first I will read this fable and afterwards I will explain you line by line. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. It was a very hot afternoon. After a while the ox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked, and snapped at the ox. He would not allow the ox to eat his hay. Oxen are generally peace-loving and patient animals. But finally the ox got upset and spoke firmly. "Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it. But you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself." So let's start with the explanation part. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. एक बार ऐसा होता है कि एक डॉग होता है जो एक अच्छे से कंफर्टेबल प्लेस की तलाश में था ताकि वो वहाँ पर आराम कर सके, वो वहाँ पर सो सके, लेट सके. तो वो ही केम टू अ मेंजर. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय मेंजर? मेंजर एक ओपन शेड है जहाँ पे बैल का या गाय का चारा रखा होता है. जब भी वो कड़ी धूप में मेहनत करके खेत से आए तब वो वहाँ पर आके अपना चारा खा सके. और जो मेंजर है वो उस बैल का खाना रखने का एक जगह होता है. डॉग उस कैटल शेड में आता है और उससे वहाँ पर मेंजर दिखता है तो वो उसके ऊपर जंप करके आराम से आकर रेस्ट करने लेट जाता है. It was a very hot afternoon. After a while, the ox returned from the field. बहुत ही गर्मी थी और वो जो ऑक्स है वो रिटर्न आते हैं अपने कैटल शेड में बहुत धूप में. फील्ड मतलब कि खेत में जो ऑक्स काम करते हैं वहाँ से वो रिटर्न आते हैं अपने शेड में. He had worked in a hot sun and now quite hungry. मीन्स कि अभी वो धूप में काम करके आए थे, बहुत मेहनत करके आए थे जो ऑक्स है वो, और अब उनको भूख लगा था. जैसे हम मेहनत करके आते या स्कूल से आते तो हमें भूख लगता है, वैसे ही उस ऑक्स को भूख लगा था. किसे भूख लगी थी? ऑक्स को. जैसे कि आप आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो जो वाइट कलर का है वो है ऑक्स. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. So वो अपने स्टॉल में आके खड़ा हो गया. अब नाउ व्हाट इज़ मीन बाय स्टॉल? स्टॉल मतलब कि अगर आप कैटल शेड में जाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग जगह में अलग अलग गाय को रखा गया, एक जगह बनाकर उसको बोलते हैं स्टॉल. एक जगह पे एक ही ऑक्स या बैल रहते हैं, उसको स्टॉल कहते हैं.
and he was about to eat his hay. hay मतलब कि चारा, जो बैल का गाय का चारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, hay. वो बस वो चारा खाने ही जा रहा था. और वो जो है था वो कहाँ पे था, वो मेंजर में था. मेंजर मतलब कि मैंने आपको बताया एक ओपन बॉक्स जिसमें है रखते, जिसमें बैल का गाय का चारा रखा जाता है. वो बस वो खाने ही जा रहा था. कौन खाने जा रहा था? यस, ऑक्स खाने जा रहा था. However, when he reached for the hay, the dog saw him. जैसे ही वो अपना चारा खाने जा रहा था, डॉग ने उसे देख लिया. डॉग ने ऑक्स को देख लिया. Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox. जैसे ही उसने देखा कि ये जो गाय है वो खड़ा है मेंजर के पास, तो वो डॉग जो है वो भौंकने लगा, बार्क करने लगा ज़ोर से ऑक्स के ऊपर. Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. जैसे ही वो जो ऑक्स है वो आगे आने की कोशिश करता था, वो डॉग भौंकने लगता था, घुराने लगता था और इसे काटने आने जैसा करता था ऑक्स के ऊपर. He would not allow the ox to eat his hay. वो ऑक्स को उसका है जो चारा है वो खाने ही दे नहीं रहा था. So, but finally, the ox got upset and spoke firmly. Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind. But you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. अब वो उनको बहुत भूख लगा था ऑक्स को. भूख में वो गुस्सा आ गया उसे कि ये मुझे खाने नहीं दे रहा है. तो उसने ज़ोर से चिल्ला के कहा, फॉर्मली, गुस्से से डॉग को, अगर तुमको ये खाना है, जो मेरा डिनर है ये तुमको खाना है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई विल नॉट माइंड इट. लेकिन तुम ना खा रहे हो ना मुझे खाने दे रहे हो. वैसे भी ये जो है ये डॉग खाता नहीं है. तो उन्होंने कहा, वो जो ऑक्स है उसने कहा, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू. मतलब ये आपके खाने, वैसे भी आप ये चीज़ खाते नहीं हो तो आपकी ये कोई यूज़ का ही नहीं है, तो मुझे तो खाने दीजिए. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. तो आप मुझे मेरा खाना खाने से क्यों रोक रहे हो. जबकि वो बेचारा जो ऑक्स है वो फील्ड से मेहनत करके आया था, हार्ड वर्क करके आया था, तो उसको तो भूख लगा था, तो उसे तो खाना देना चाहिए था. लेकिन जो डॉग है वो उसे खाने दे ही नहीं रहा था. ही वॉज नॉट अलाउिंग द ऑक्स टू ईट दैट हे. ही वॉज जस्ट बार्किंग एट हिम. सो ही गॉट एंग्री एंड ही सेड कि मुझे खाने दो, मुझे भूख लगा है, मुझे मेरा खाना खाने दो. आपका तो ये यूज़ का है ही नहीं, आपको तो खाना नहीं है, मैं तो खा सकता हूँ ना ये. सो the moral of the story is, so what is the moral of the story here? मीन्स यहाँ पे हमें इस लेसन से क्या सीखने में मिलता है, देखते. डोंट बी ग्रज. ना व्हाट इज़ मीन बाय बी ग्रज? बी ग्रज मीन्स अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है तो उसे हमें देखकर जलस, जो हमारे दिल में जलस होता है वो नहीं होना चाहिए. अगर उसे मिल रही है तो हमें उसमें खुश होना चाहिए. वो चीज़ हमारे यूज़ का तो है नहीं, तो हम उनको देने में क्यों जलन पना, मतलब वो देखकर क्यों हम जले. जो उसे मिल रहा है तो वो उसमें खुश है तो उसको उसमें खुश होने देते हैं. डोंट बी ग्रज अदर्स व्हाट यू डोंट एंजॉय योरसेल्फ. हमें खुश रहना चाहिए, मतलब हमें जलन नहीं रहना चाहिए हमारे दिल में कि उनको ये मिल रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है. नहीं, जब हमारे जो वो यूज़ का है ही नहीं तो हम क्यों जलन करें. जिसे जो मिल रहा है उसमें वो खुश रहे और हमें जो मिल रहा है हम उसमें खुश रहे. So students, hope you all have understood both the fables. First was the stag at the pool, and the second, the dog in the manger. The notes will be sent you in WhatsApp. Till then, stay home, stay safe. Thank you.